الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے واسطے جس ذات کے انعامات احسانات اور مہربانیاں لا تعداد اور ان گنت ہیں. اللہ کی تعریف اور اللہ کی عظمت بیان کرنے سے ہماری زبانیں عاجز اور کمزور ہیں، اور ہماری بھلائی ہمیشہ اسی میں ہے کہ ہر وقت اپنی زبان اللہ کی یاد سے تر رکھیں، اور بے شمار درود و سلام ساقی حوض کوثر شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ بیان کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور قصہ بیان کرنے کا بھی اپنی کتاب میں کیا دیا، حکم دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اور جس ملک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ ملک عراق تھا، اور ملک عراق کے شہر بابل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور یہاں کے لوگ سورج و چاند اور ستاروں کی کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور بت پرست تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی ان کو کیا دی، دعوت دی، اور توحید کا درس سناتے رہے. لیکن یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا لیا ان کے بتوں کو توڑنے کا. جب کہ وہ لوگ جشن منانے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا. اور جب وہ لوگ واپس آئے تو سیدھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جن بتوں کی کیا کرتے ہو، پوجا کرتے ہو،
اور جن کی تم کیا کرتے ہو عبادت کرتے ہو ان کا خالق بھی اللہ اور تمہارا خالق بھی اللہ ہے. تو مطلب یہ کہ جو خالق ہے عبادت اس کی ہونی چاہیے اور جو مخلوق ہے پیدا کیا ہوا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں, کیونکہ عبادت کے لائق خالق اور جو مخلوق ہے وہ عبادت کے لائق نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون ما تنحتون, کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو, خود بناتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون, اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا اور ان بتوں کو جو تم جس چیز سے بناتے ہو اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ. مطلب یہ کہ تمہارا خالق بھی اللہ اور تمہارے عمل کا خالق بھی کیا ہے اللہ ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. لیکن ان لوگوں کو بات سمجھ نہ آئی, درس توحید ان کو سمجھ نہ آیا, تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ایک مکان بنایا جائے اور اس مکان کے اندر بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دو. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمایا کہ کہا لبنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم, کہ اس کے لیے کیا بناؤ, مکان بناؤ اور اس میں آگ جلاؤ اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دو. فالقوہ فی الجحیم. تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا ارادہ کیا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مکر و فریب کو اور ان کی اس چال بازی کو اللہ تبارک و تعالی نے ناکام بنا دیا. فجعلناہم, ہم نے ان کو کیا بنا دیا, نیچا بنا دیا. فرادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین, کہ ان کو ہم نے نیچا بنا دیا, ان کے مکر و فریب کو ہم نے ناکام بنا دیا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ان لوگوں نے ڈال دیا, اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, کہ اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اور علماء لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی بردن کے آگے لفظ سلام کا نہ کہتے, آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی, حضرت ابراہیم علیہ السلام برداشت نہ کر سکتے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرام اور سکون حاصل ہو, سردی نہ لگے. اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو گلزار بنا دیا. تو آگ کا کام جلا دینا ہے, لیکن آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں تھا, ورنہ آگ کا کام جلا دینا ہے. لیکن اس کے باوجود آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں. اور اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان کیا ہو, بے بس ہو, جب انسان لاچار ہو, ایسی حالت میں بھی مدد کرنے والا کون ہے, اللہ ہے. کہ جب انسان کیا ہو جائے, بے بس ہو جائے اور کوئی اسباب نہ ہوں, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی کیا ہے, مدد کرنے والا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات تھے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ ہمیں اللہ کافی ہے, و نعم الوکیل, اور وہی بہترین کارساز ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے, پریشانی میں مبتلا ہو جائے, تو کیا کہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو یہ وہ کلمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت کہے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمات کہے جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈرایا گیا کہ آپ کے لیے بہت بڑی فوج جمع ہے آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے. تو صحابہ کرام نے بھی کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد بھی اللہ نے کی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ کس نے رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کلمہ کی کیا ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. تو جب ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ملک چھوڑنا پڑا.
اور ہجرت کرنی پڑی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری کیا فرمائے گا، رہبری اور رہنمائی فرمائے گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک عراق سے سفر کیا ملک شام کی طرف، ملک شام کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے ہمارے رب ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا فرمائی، قبول فرمائی۔ انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی کہ اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، رب حب لی من الصالحین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لڑکے کی خوشخبری دی کہ وہ لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، اور وہ لڑکا حلیم ہوگا، یعنی بردبار حوصلے والا ہوگا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، وہ لڑکا حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، حوصلے والا ہوگا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکا عطا کر دیا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو جب وہ دودھ پی رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور امتحان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے کیا لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے لیتے ہیں۔ جتنا آدمی دین میں مضبوط ہوگا اتنی امتحان اللہ کی طرف سے کیا آتے ہیں، زیادہ آتے ہیں، زیادہ امتحانات میں اللہ کے بندوں کو مبتلا ہونا پڑتا ہے اور ان کے رتبے کیا ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور امتحان لیا کہ یہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے اور اس کی والدہ کو ایسی وادی میں چھوڑ کر آئیں جہاں پانی نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں، اور عام انسان بھی وہاں نہیں بستے، یعنی انسانی آبادی بھی نہیں ہے، بے وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی میں کہ جہاں کھیتی باڑی نہیں، مطلب یہ کہ وہاں جہاں انسان آباد نہیں، پانی نہیں، ایسی وادی میں آپ چھوڑ کر آئیں۔ تو یہ کیا تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کوئی ہیلا پیش نہیں کیا کہ اے اللہ میں ہجرت کر چکا ہوں، میں مہاجر ہوں، میرے رشتہ دار نہیں ہے، اور میرا یہ ایک لڑکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی ہیلا، کوئی بہانہ پیش نہیں کیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فوراً مان لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر ایسی وادی میں پہنچے جہاں کھیتی باڑی نہیں تھی، انسان آباد نہیں تھے، یعنی مکہ المکرمہ، اور اس وقت یہاں آبادی نہیں تھی، انسان آباد نہیں تھے۔ تو یہاں چھوڑنے کے لیے آئے مکہ المکرمہ میں، اور یہ کیا تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک کھجور کا تھیلا ان کے سپرد کیا اور پانی کا ایک مشکیزہ، اور پھر واپس روانہ ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تو تیسری مرتبہ کہا کہ کیا اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اس وقت پھر ہمیں وہ ضائع نہیں کرے گا، اگر حکم اسی کا ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو جب پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی وجہ سے بچہ تڑپنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا بھی بندوبست فرما دیا۔ فرشتے نے زمین پر مار کر زمین کو کھود ڈالا اور پانی نکل آیا، اور جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے، اور وہ زمین پر سب سے افضل پانی آب زمزم ہے۔ روئے زمین پر سب سے افضل پانی آب زمزم۔ تو یہ کھانے کا کھانا بھی ہے اور بیماری سے کیا ہے، شفا بھی ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جس مقصد کے لیے انسان اسے پیے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مقصد اس کا پورا فرماتے ہیں۔
मतलब यह है कि जायज मकसद। तो जायज मकसद के लिए इंसान किए जिस इरादे से, अल्लाह तबारक व तआला उसका वही मकसद पूरा फरमा देंगे। तो ये आब जमजम की क्या है फजीलत है, और बहुत से नेक लोगों ने तजुर्बा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए उन्होंने पिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका वही मकसद क्या क्या पूरा किया। बहुत से नेक लोगों ने, उलमा ने तजुर्बा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका वही मकसद क्या किया, पूरा कर लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़य नहीं किया। और फिर जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इतनी उम्र को पहुंचे कि अपने वालिद के साथ चले और फिरे, इतनी उम्र को पहुंचे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और बड़ा इम्तिहान लिया। पहले कई इम्तिहान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला ले चुके थे, और ये इम्तिहान बहुत बड़ा था। वो क्या कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में आपको ज़बह करते हुए देखता हूं कि मैं ज़बह कर रहा हूं। और नबी का ख्वाब वो क्या होता है, वही होता है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है, अंबिया के ख्वाब में शैतान दखल अंदाजी नहीं कर सकता, लेकिन आम इंसान के ख्वाब में शैतान क्या करता है, दखल अंदाजी करता है। अंबिया के ख्वाब दखल अंदाजी से महफूज होते हैं, अंबिया के ख्वाब वही होते हैं, अंबिया के ख्वाब मिन जानिबिल्लाह होते हैं। तो फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इफ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे बाप, अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है आप कर गुजरे, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। कि मैं क्या करूंगा, सब्र करूंगा। आपको अल्लाह की तरफ से जो हुक्म हुआ है आप उसको कर गुजरे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के मुती हो गए, यानी अल्लाह की तरफ से जो हुक्म हुआ उसको करने के लिए तैयार हो गए, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म के लिए तैयार हो गए। वतल्लहु लिल जबीन, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को करवट के बल लिटा दिया, करवट के बल लिटा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आवाज दी, या इब्राहिम इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया, कि आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया कि आपने देखा था कि मैं बेटे को ज़बह कर रहा हूं, यूं नहीं देखा था कि ज़बह कर दिया है, ज़बह कर रहा हूं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी लेकर ज़बह कर रहे थे, लेकिन ज़बह नहीं हुए, क्यों कि अल्लाह का हुक्म नहीं था। और छुरी का काम काट देना है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से काटने का हुक्म नहीं था, तो छुरी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को काटा नहीं। तो जिस तरह के जानवर को करवट के बल लिटाया जाता है किबला रुख, तो इसी तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को करवट के बल लिटाया गया। और ये जो कहा जाता है पिछाने के बल, तो ये सही नहीं, क्योंकि कुरान मजीद में आया फल्लमा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, और इंसान के जबीन दो है, दाएं और बाएं, और ये जो न जबा है पिछानी। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को करवट के बल लिटाया गया और पिछानी के बल नहीं लिटाया गया। तो फल्लमा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको करवट के बल लिटा दिया। तो अल्लाह पाक आगे फरमाते हैं, इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। बेटे को ज़बह करना ये कोई मामूली हुक्म नहीं था अल्लाह की तरफ से, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह की तरफ से क्या थी, आजमाइश थी।
तो वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम ज़बीहा भेज दिया, एक बड़ा ज़बीहा दे दिया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और वो क्या था? वो मेंढा था, सींगों वाला। वो कहाँ से आया था? तो इस बारे में किसी सही रिवायत में ये बात नहीं आई। बाद उलमा लिखते हैं कि वो जन्नत से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ले आए थे, लेकिन ये सही हदीस से यानी ये साबित नहीं है, बल्कि ये इसराइली रिवायात की बातें हैं। और हदीस कुरान मजीद में भी इतना आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले एक अजीम ज़बीहा दे दिया, यानी एक बड़ा जानवर कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले उसको क्या करे? ज़बह करे। और वो क्या था? एक सींगों वाला मेंढा था। बस इतनी सी बात है, और ये नहीं कि वो कहाँ से आया था, इस तरह की बातें नहीं। तो किताब और सुन्नत में बात जितना आ जाए तो उतनी हद तक उसको रखें। भाई किताब और सुन्नत के अंदर ये बात इतनी आई है बस। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये इताअत और ये फर्मा बरदारी बहुत पसंद आई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सुन्नत को फिर बाद में आने वाले लोगों के लिए भी क्या फरमा दिया? इसको जारी फरमा दिया कि क़यामत तक आने वाले लोग भी इस सुन्नत इब्राहीमी पर क्या करें? अमल करें। तो ये कुर्बानी करना ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस सुन्नत पर क्या करते रहे? अमल करते रहे। लेकिन बाद लोग कहते हैं कि ये कुर्बानी हुज्जाज के लिए है, दूसरे मुसलमानों के लिए नहीं। तो ये बात जो है ना, ये गलत है कि सिर्फ हुज्जाज के लिए है और दूसरे मुसलमानों के लिए ये कुर्बानी नहीं। ये गलत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना में रहे, और आप मक्का में तो नहीं थे, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बानी करते रहे 10 साल। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को भी कुर्बानी करने की तरगीब देते रहे, ताकीद करते रहे। तो इससे मालूम हुआ कि ये बात क्या है? गलत है, दुरुस्त नहीं, कि ये हुज्जाज के लिए है और आम मुसलमानों के लिए नहीं है। ये गलत बात है, ये दुरुस्त नहीं है। तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस जानवर की कुर्बानी करनी है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जानवर के बारे में कुछ हिदायत दी हैं कि इंसान उन हिदायत और फरामीन की रोशनी में कुर्बानी करने के लिए जानवर ले और ज़बह करे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत की रोशनी में, और इस तरह नहीं कि जिस तरह जानवर मिल जाए उसकी कुर्बानी कर ले, नहीं, बल्कि जिस जानवर की कुर्बानी करनी है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या है? हिदायत है। उन हिदायत के मुताबिक इंसान कुर्बानी करेगा तो वो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह के अंदर क्या होगी? कबूल होगी। तो पहले उम्र के बारे में सुन ले कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जानवर की उम्र के बारे में भी बताया है कि जिस जानवर की कुर्बानी करनी है कि उसकी उम्र कितनी हो। तो हदीस पाक में आया, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, कि दुंदा जानवर की कुर्बानी करनी है, जो जानवर 2 दांता हो, जिसको हम दुंदा कहते हैं, या इससे क्या हो? ऊपर हो। इससे जो जानवर नीचे है, जने जिसको खीरा कहते हैं, पक्का खीरा, कच्चा खीरा, इनकी कुर्बानी जायज नहीं, बल्कि जानवर दुंदा होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन उलमा कहते हैं कि अगर क्या हो, मजबूरी हो, दुश्वारी पेश आ जाए कि इंसान के पास रकम नहीं कि दुंदा जानवर खरीद सके, या मंडी में नहीं मिल रहा दुंदा जानवर, तो फिर भेड़ का 1 साल, दुम्बे की किस्म से या भेड़ की किस्म से 1 साल का जानवर किफायत कर जाता है, और उसको अरबी में जज़ा बोलते हैं, यानी भेड़ का
जजा, और जजा जो 1 साल का क्या हो जाए, पूरा हो जाए, तो उसकी कुर्बानी भी क्या है, जायज है दुश्वारी के वक्त। और बाद उलमा इस तरफ गए हैं कि दुश्वारी हो या ना हो, भेड़ या जो दुम्बा है 1 साल का हो तो उसकी कुर्बानी क्या है, जायज है। तो ये मसला कुर्बानी का लिहाजा एहतियात कर लेनी चाहिए कि अगर दुम्बा ना मिले तो फिर 1 साल का इंसान भेड़ या दुम्बे की किस्म से जानवर लेकर उसकी क्या कर ले, कुर्बानी कर ले। तो कुर्बानी के लिए दुम्बा होना ये क्या है, जरूरी है। या इससे क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। खीरा जानवर, पक्का खीरा, कच्चा खीरा, ये जायज नहीं। और अरबी में मुसल्ला उस जानवर को कहते हैं कि दूध का दांत गिर जाए और दूसरा दांत जो है ना निकल आए, तो इसको अरबी में मुसल्ला कहते हैं। दूध का दांत गिर जाए और दूसरा दांत निकल आए तो इसको क्या कहा जाता है, मुसल्ला कहा जाता है। और हम लोग दुम्दा, दो दांता कहते हैं इसको। और कुछ आप अलैहिस्सलाम ने उयूब भी बताए हैं, 6 ऐब आप अलैहिस्सलाम ने बताए हैं। तो जिस जानवर के अंदर वो 6 ऐब पाए जाए उस जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया नस्तशरिफल ऐन वल उज़ुन, कि हम जिस जानवर की कुर्बानी करनी है उसका कान अच्छी तरह देखें, उसकी आंख भी अच्छी तरह देखें कि कहीं कान में नक्स ऐब तो नहीं है और आंख के अंदर ऐब और नक्स तो नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने अच्छी तरह देखने का क्या दे हुक्म दिया है। और उस जानवर की कुर्बानी करने से भी आपने मना फरमाया जिस जानवर का कान अगली तरफ से कतरा हुआ हो या पिछली तरफ से कतरा हुआ हो या लंबा सुराख हो या गोल सुराख हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी करने से भी आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। इसी तरह जिस जानवर का सींग टूटा हुआ हो तो उस जानवर की कुर्बानी करने से भी आपने मना फरमा दिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने कोई हद मुकर्रर नहीं की कि सींग कितना टूटा हुआ हो, कान कितना कटा हुआ हो। आप अलैहिस्सलाम ने इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं की। आप अलैहिस्सलाम का हुक्म आम है। तो लिहाजा जिस जानवर का सींग टूटा हुआ हो, जितना भी टूटा हुआ हो, कान कटा हुआ हो, जितना भी कटा हुआ हो, उसकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने कोई हद मुकर्रर नहीं की, बताया नहीं कि कान इतना कटा हुआ हो तो कुर्बानी जायज नहीं है, इतना कटा हुआ हो तो जायज है, और सींग इतना टूटा हुआ हो तो कुर्बानी जायज नहीं, इतना टूटा हुआ हो जायज है। इस तरह आप अलैहिस्सलाम ने हद बयान नहीं फरमाई। लिहाजा जिस जानवर का कान कटा हुआ हो, जिस जानवर का सींग टूटा हुआ हो, उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह जो जानवर क्या हो, लंगड़ा हो, लंगड़े जानवर की कुर्बानी करने से भी आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। इसी तरह वो जानवर अल मरीजा जो क्या हो, बीमार हो, उस जानवर की कुर्बानी करने से भी आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। इसी तरह जो जानवर लागिर हो, कमजोर हो, पतला हो, जिसके अंदर मगज ना हो, गोदा ना हो, रोगन ना हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी करने से भी आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। तो ये क्या है, 6 ऐब हैं, यानी कान कटा हुआ हो, सींग टूटा हुआ हो, आंख के अंदर क्या हो, ऐब हो, जानवर लंगड़ा हो, बीमार हो, कमजोर हो, ये 6 ऐब हैं। तो जिस जानवर के अंदर ये 6 ऐब पाए जाए उसकी कुर्बानी ठीक नहीं है, जायज नहीं है। और आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमा दिया, मना फरमा दिया। तो ये क्या है, उजूब है, ये उजूब भी याद रख लें। इसी तरह उम्र के बारे में भी सही तौर पर समझ लें। और शिरकत के बारे में भी आप अलैहिस्सलाम की हिदायत है कि ऊंट के अंदर 10 आदमी शरीक हो सकते हैं। ऊंट के अंदर कि अगर इंसान अपने घरों में कुर्बानी कर रहा है जिसको उज़हिया बोलते हैं तो 10 आदमी शरीक हो सकते हैं। और गाय के अंदर 7 आदमी, और एक बकरा, एक बकरी, एक छतरा, एक छतरी, एक घर वालों की तरफ से क्या होगा, काफी होगा। लेकिन जो कुर्बानी हज करने वाले, उम्रा करने वाले मक्का में करते हैं तो उसको कहते हैं हज।
तो हादी के अंदर 7 आदमी ऊंट में शरीक हो सकेंगे, 7 आदमी, 10 आदमी नहीं। तो ये क्या किया गया, फर्क किया गया है कि घरों में जो आदमी कुर्बानी करता है तो 10 आदमी, लेकिन अगर हद यह है यानी हज और उम्रा करने वाले मक्का में ऊंट की कुर्बानी करेंगे तो वो 7 शरीक हो सकेंगे, 10 शरीक नहीं हो सकेंगे। और अगर आदमी अकेले हज करता है, सिर्फ हज करता है, तो उस पर कुर्बानी जरूरी नहीं। लेकिन अगर हज के दिनों में उम्रा करता है, उम्रा से फारिग होकर फिर हज करता है, तो इस पर कुर्बानी लाजिम है। और इसको शरई इस्तिलाह में मुतमत्ते कहते हैं, यानी हज तमत्तो करने वाला, तो इस पर कुर्बानी लाजिम। इसी तरह इंसान हज के दिनों में उम्रे का एहराम बांधता है, फिर एहराम नहीं खोलता, हज करके फिर एहराम खोलता है, तो ऐसे शख्स को कारिन बोलते हैं। तो कारिन पर भी कुर्बानी करना क्या है, लाजिम है। यानी मुतमत्ते पर भी, कारिन पर भी, इन पर कुर्बानी करना लाजिम है। लेकिन अगर वुसअत नहीं, इनका इंसान के पास ताकत नहीं, तो फिर हुक्म है कि 3 रोजे हज के दिनों में रखे और 7 रोजे जब वापस हो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फमन लम यजिद फसियाम सलासत अय्यामिन फिल हज व सबअतिन इज़ा रजअतुम, के 7 रोजे जब वापस हो और 3 रोजे हज के दिनों में रख ले। यानी जिसने हज और उम्रा इकट्ठे किया या उम्रा अब हज के दिनों में किया, उम्रा का एहराम खोल के फिर 8 ज़ुल्हिज्जा को हज का एहराम बांध लिया, तो ऐसे लोगों पर कुर्बानी क्या हो जाती है, लाजिम हो जाती है। तो ये मसाइल हैं, इनका समझना जो है ना, ये क्या है, जरूरी है। और किस जानवर की कुर्बानी अफजल है, इस बारे में भी उलमा ने लिखा कि सबसे अफजल ऊंट की कुर्बानी, और फिर गाय की कुर्बानी, और फिर बकरी की कुर्बानी, फिर ऊंट में शिरकत, फिर गाय में शिरकत। इस तरह की कुर्बानी क्या होगी, अफजल होगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो जुमा के दिन पहली घड़ी में आएगा तो कुर्बानी, ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलेगा, दूसरी घड़ी में आएगा गाय की कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा, तीसरी घड़ी में आएगा सींगों वाले मेढ़े की कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा। तो इसी से उलमा ने इस्तेदलाल किया कि सबसे अफजल ऊंट की कुर्बानी, फिर गाय की, फिर बकरी की, और फिर ऊंट में शिरकत, फिर गाय में शिरकत। तो इसी तरतीब से कुर्बानी क्या होगी, अफजल होगी। और फिर खसी गैर खसी, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। जानवर खसी है उसकी कुर्बानी करना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित, इसी तरह गैर खसी जानवर की कुर्बानी करना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, और इसमें कोई फर्क नहीं है। और जिस आदमी ने कोई जानवर इस नीयत से खरीदा कि मैं इसकी कुर्बानी करूंगा, अब उस जानवर का फरोख्त करना जायज नहीं, क्योंकि अब वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए क्या हो चुका है, वक्फ हो चुका है। और जो माल वक्फ हो उसको ना बेचा जा सकता है, ना हिबा किया जा सकता है, ना उसमें ना वो विरासत के तौर पर क्या होता है, तकसीम होता है। तो इसलिए जिस आदमी ने कुर्बानी की नियत से कोई जानवर खरीदा तो उसको वो फरोख्त नहीं कर सकता, इल्ला ये कि उसके अंदर क्या निकला, ऐब निकला है। ऐब निकला है तो उसको फरोख्त करके कोई ऐसा जानवर खरीदे जिसमें ऐब ना हो। या फिर इंसान ने बकरी खरीदी कुर्बानी के लिए, अब उसका इरादा तब्दील हो गया कि मैं बकरी की बजाय गाय खरीद लूं, तो इस सूरत के अंदर भी बकरी को जो कुर्बानी के लिए खरीदी थी उसको फरोख्त करके गाय खरीद सकता है, यानी इन सूरतों के अंदर। वरना कुर्बानी के जानवर को बेचना जायज नहीं है। यानी जिस जानवर को इंसान ने कुर्बानी की नियत से खरीदा तो उसका बेचना जायज नहीं है, इल्ला ये कि ऐब निकल आए या उससे बेहतर इंसान कुर्बानी करना चाहता है तो तब उसको क्या कर सकता है, फरोख्त कर सकता है। और ज़ुल्हिज्जा का चांद देखने के बाद इंसान फिर अपनी हजामत ना बनवाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने का क्या करता है, इरादा करता है, तो ज़ुल्हिज्जा का चांद देखने के बाद वो हजामत ना बनवाए। इसी तरह जैसे आदमी के पास कुर्बानी करने की वुसअत नहीं है,
अब वो चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सवाब दे दे, तो वो भी जुल्हिज्जा का चांद देखने के बाद हजामत न बनवाए, नमाज ईद पढ़ने के बाद हजामत बनवाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी पूरी कुर्बानी का सवाब दे देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी ने अर्ज की कि अल्लाह का रसूल, मेरे पास दूध देने वाला जानवर होता है और कोई जानवर नहीं होता, तो क्या मैं दूध वाले जानवर को मैं कुर्बानी में ज़बह करूं, उसकी मैं कुर्बानी करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जो दूध वाला जानवर है जिसका तुम दूध पीते हो उसको ज़बह ना करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और जानवर नहीं है। तुम हजामत ना बनाओ, बाद में हजामत बनवा लेना, अल्लाह तबारक व तआला पूरी कुर्बानी का क्या दे देंगे, सवाब दे देंगे। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक व तआला हर नफ्स के ज़िम्मे इतना काम लगाते हैं, इतना अमल लगाते हैं जितना करने की बंदे में क्या होती है, ताकत होती है। और ताकत से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को किसी अमल का, किसी हुक्म का अल्लाह तबारक व तआला पाबंद नहीं बनाते। तो कुर्बानी करना ये भी आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और बाद उलमा कहते हैं कि ये फ़र्ज और ज़रूरी है, और कुछ उलमा कहते हैं कि फ़र्ज और ज़रूरी नहीं है। जो आदमी वुसअत रखता है तो उसे कुर्बानी करनी चाहिए, और जिस आदमी के पास वुसअत नहीं है वो मुकल्लफ नहीं है, वो हुक्म का पाबंद नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ऐ पैगम्बर हमने आपको खैर कसीर अता किया, फसल्लि लिरब्बिका आप अपने रब की नमाज पढ़े, वन्हर और आप क्या करें, कुर्बानी करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बर को भी हुक्म दिया, इसी तरह उम्मत के लिए भी क्या है, ये हुक्म है। तो जो वुसअत रखते हैं तो वो क्या करें, कुर्बानी करें, और जिनके पास वुसअत नहीं है तो उन पर ये हुक्म लाजिम नहीं है, वो इसके क्या है, पाबंद नहीं है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल है, अल्लाह तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह अपने बंदों को ऐसे अमाल का, ऐसे अहकाम का पाबंद बनाते हैं जिनके करने की बंदों में क्या हो, ताकत हो। अगर बंदों में ताकत नहीं है तो बंदा मुकल्लफ नहीं होता और उस हुक्म का बंदा पाबंद नहीं होता। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की क्या है, बड़ी मेहरबानी है, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला बड़े मेहरबान हैं। और ये महीना जुल्हिज्जा ये शुरू होने वाला है, और ये हुर्मत वाले महीने यानी जुल्कादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम और हराम, इनको हुर्मत वाले महीने कहते हैं। और रजब, तो इन हुर्मत वाले जो महीने हैं तो दूसरे महीनों की निस्बत, जैसे रमज़ान मुबारक के अलावा दूसरे महीनों की निस्बत ये क्या रखते हैं, फजीलत रखते हैं। जुल्कादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम, रजब, तो ये महीने क्या है, हुर्मत वाले महीने हैं कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला के इन महीनों में नाफरमानी करे तो उसका गुनाह बढ़ जाता है दूसरे महीनों की निस्बत, दूसरे महीनों की निस्बत गुनाह बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या है, हुर्मत वाले महीने हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया है कुरान मजीद के अंदर कि मिन्हा अरबातुन हुरुम, कुल महीने कितने, 12, और इनमें से 4 क्या है, हुर्मत वाले हैं। मिन्हा अरबातुन हुरुम, तो ये हुर्मत वाले महीने हैं। और दौरे जहलियत के अंदर भी लोग इन महीनों की क्या करते थे, अजमत करते थे। इन महीनों के अंदर जंग किताल से रुक जाते थे, बाद आ जाते थे, और इन महीनों के अंदर दौरे जहलियत के अंदर भी अमन व अमान होता था। तो ये महीने जो है ये मामूली महीने नहीं हैं। और खुसूसन जुल्हिज्जा का पहला अशरा, तो पहले अशरा में अमल करने की क्या है, ज़्यादा फजीलत है। पहले अशरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्हिज्जा के जो पहले 10 दिन हैं इनमें अमल करना अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा महबूब है दूसरे दिनों की निस्बत। जुल्हिज्जा के जो पहले 10 दिन हैं इनमें अमल करना नेक अल्लाह तबारक व तआला को दूसरे दिनों से ज़्यादा महबूब और पसंद है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा कि क्या जिहाद करने से भी अल्लाह को इन अशरा जुल्हिज्जा के पहले दिनों में अमल करना ज़्यादा महबूब, जिहाद करने से भी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, दूसरे दिनों में इंसान जिहाद करे
اور ان دنوں میں نیک عمل کرے تو ان دنوں میں نیک عمل کرنا جہاد سے بھی افضل، اللہ یہ کہ انسان جہاد کے لیے نکلے، مال بھی قربان کر دے، اپنی جان بھی قربان کر دے تو اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو اتنی پہلے عشرہ کے اندر عمل کرنا اتنا اللہ کو کیا زیادہ محبوب ہے جہاد سے بھی۔ تو یہ پہلا عشرہ یہ معمولی نہیں کہ اس عشرہ کے اندر جتنا انسان نیک عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کیا ہے زیادہ محبوب ہے جہاد سے بھی، اللہ یہ کہ انسان جہاد کے لیے نکلے، مال بھی قربان، جان بھی قربان، تو اس کا عمل کیا ہوگا اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا۔ ورنہ جہاد کے لیے جائے واپس آ جائے اور ایک آدمی نیک عمل کرتا رہے تو اس کا عمل کیا ہوگا اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا۔ لیکن جہاد بھی دوسرے دنوں میں، جہاد بھی عشرہ ذی الحجہ میں نہیں بلکہ دوسرے دنوں میں انسان جہاد کرے، تو دوسرے دنوں میں انسان کا جہاد کرنے سے ان دنوں کے اندر نیک عمل کرنا یہ کیا ہے زیادہ افضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب۔ تو یہ جو مسائل سنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مسائل پر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عشرہ ذی الحجہ میں بھی مزید نیک عمل کرنے کے اللہ توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ برے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم أيد الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمشركين، اللهم انصرنا على أعداء الدين، لك الحمد يا رب العالمين، وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔